Sir, I rise to present the report number 74th and 75th, Hindi and English versions of the Public Accounts Committee 2023-24 as listed against my name in today's list of business serial number 6. Item number 7, Sri Ravneet Singh. आप बोलना शुरू करो, माइक चालू जाएगा. Speaker sir, I raise to lay on the table. Speaker sir, I rise to lay on the table the minutes of Hindi and English versions of the 11th sitting of the committee on absence of members from the sitting of the House as listed against my name at serial number 7 in today's order list. Thank you, sir. Item number 8, Shri B. Mehtab ji. Location. Sir, I rise to present the 51st report, Hindi and English version of the Standing Committee on Labour, Textiles and Skill Development 2022-23 on the Employees State Insurance Corporation applicability and benefits under ESI scheme, functioning of ESI hospitals and management of corpus fund relating to the Ministry of Labour and Employment. Thank you, sir. माननीय सदस्यगण, नई व्यवस्था है और नई व्यवस्थाओं में टेक्नोलॉजी का भी प्रयोग किया है. इसलिए मेरा आग्रह है, आज सुबह भी 10 बजे से टेक्नोलॉजी के बारे में सिखाने के लिए सभी माननीय सदस्यों से आग्रह किया था. कल भी सुबह 10 बजे टेक्नोलॉजी के जो भी सीखना आना चाहें इस पार्लियामेंट कैंपस में आमंत्रित हैं. टेक्नोलॉजी के कारण कुछ चीज़ें हो सकती है, आपको आवाज़ कम आए, उसको ठीक कर रहे हैं. नए घर में आते हैं तो नए परिवार में आते हैं तो आप सब समझते हैं चीज़ों को. जी, Whether any paper circulation can be circulated at least for few days. ठीक है. और इसीलिए इस नई व्यवस्था में सभी लोग आसन का सहयोग करेंगे, ऐसी मेरी अपेक्षा है. जो कुछ भी व्यवस्थाओं के अंदर आपको लगे मुझे बताएं. इस 2 दिन के बाद आपको व्यवस्थाएं और व्यवस्थित मिलेगी. जितना दिन 2 दिन में ठीक होगा आप कोशिश करेंगे, नहीं तो नए सत्र के समय सब व्यवस्थाएं मिलेगी. हम सब जानते हैं कि नए प्रयोग में कुछ चीज़ें टेक्नोलॉजी को, हाँ वो भी सब विषय मेरे ध्यान में, और भी आप लिखकर मुझे डाल देना, मैं प्रयास करूँगा. आइटम नंबर 9. വനിതാ സംവരണ ബില്ല് ലോക്സഭ ഇന്ന് പാസാക്കിയേക്കും. ലോക്സഭയിൽ ചർച്ചയ്ക്കായി 7 മണിക്കൂറാണ് നീക്കിവച്ചിട്ടുള്ളത്. സോണിയാഗാന്ധിയാകും കോൺഗ്രസിൽ നിന്ന് ചർച്ചകൾക്ക് തുടക്കമിട്ട് ആദ്യം സംസാരിക്കുക എന്ന വിവരമാണ് പുറത്തുവരുന്നത്. ചർച്ചകൾക്ക് മറുപടി നൽകി അതിവേഗം ബിൽ പാസാക്കാനുള്ള നീക്കമാണ് കേന്ദ്ര സർക്കാരിന്റെ ഭാഗത്ത് നിന്ന് ഉണ്ടാകുന്നത്. ബിൽ പാസ്സാകുന്നതോടെ പാർലമെന്റിന്റെ പുതിയ മന്ദിരത്തിൽ പാസ്സാകുന്ന ആദ്യ ബില്ലായത് മാറുകയും ചെയ്യും. ആർ രാധാകൃഷ്ണൻ ചേരുന്നുണ്ട് വിവരങ്ങളുമായി. ആർക്കെ, സഭാ നടപടികൾ എങ്ങനെ പുരോഗമിക്കുന്നു? ചർച്ച എപ്പോൾ? അല്പസമയത്തിനകം സഭാ നടപടികളിലേക്ക് കടക്കും. മറ്റു ചില ബിസിനസ്സുകൾ, സഭയുടെ മറ്റു ചില ബിസിനസ്സുകൾ, അംഗങ്ങളുടെ ചില ആബ്സെന്റുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടുള്ള വിഷയങ്ങൾ, പേപ്പറുകൾ മേശപ്പുറത്ത് വയ്ക്കുന്ന നടപടികൾ, ഇതൊക്കെയാണ് ആദ്യ നടപടിയായിട്ട് സഭയിൽ ഉള്ളത്. അതിനുശേഷം നടപടികളിലേക്ക് സഭ കടക്കുകയാണ്. ഇന്ന് 6 മണി വരെയാണ് ഈ ബില്ലിന്മേലുള്ള ചർച്ചയ്ക്ക് നിശ്ചയിച്ചിരിക്കുന്നത്. ബില്ലിന്മേലുള്ള ചർച്ച സഭയിൽ നടക്കും. അതിനുശേഷം ഈ ചർച്ച ഉപസംഹരിച്ചുകൊണ്ട് നിയമമന്ത്രി മറുപടി നൽകും. ഒരു പക്ഷേ ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടുള്ള ചർച്ച ഉപസംഹരിച്ച് പ്രധാനമന്ത്രി ചില അഭിപ്രായ പ്രകടനങ്ങൾ നടത്താനുള്ള സാഹചര്യവും ഇപ്പോൾ ഈ കേന്ദ്ര സർക്കാരുമായി ബന്ധപ്പെടുന്ന വൃത്തങ്ങൾ വ്യക്തമാക്കുന്നുണ്ട്. പ്രതിപക്ഷത്തെ ഈ വിഷയത്തിൽ കോൺഗ്രസിനെ പ്രധാനമായിട്ടും പ്രതിനിധീകരിക്കാനായിട്ട് പോകുന്നത് സോണിയാഗാന്ധി ആയിരിക്കും എന്നുള്ളതാണ് ഇന്നത്തെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട കാഴ്ചയായി മാറാൻ പോകുന്നത്. ഇതിനകം തന്നെ ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ചർച്ച കോൺഗ്രസിനുള്ളിൽ നടന്നിട്ടുണ്ട്. BJP സ്മൃതി ഇറാനിയുടെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള വനിതാ അംഗങ്ങളെ പങ്കെടുപ്പിച്ചുകൊണ്ടായിരിക്കും ഈ ചർച്ചയിൽ പങ്കെടുക്കാനായി പോകുന്നത്. ശരി, ആർക്കെ വിവരങ്ങൾ നൽകുകയായിരുന്നു. ലോക്സഭയിലേക്ക് വീണ്ടും. उन्होंने ये भी कहा था, मैं कोट अनकोट कहना चाहता हूं, 26 जनवरी 1950 को हम परस्पर विरोधी जीवन में प्रवेश करने जा रहे हैं. राजनीति में हमारे यहाँ समानता होगी और सामाजिक और आर्थिक जीवन में असमानता होगी.
राजनीति में हम एक व्यक्ति एक मत के सिद्धांत को मान्यता देंगे? हमारे सामाजिक आर्थिक जीवन में हम अपनी सामाजिक और आर्थिक संरचना के कारण एक व्यक्ति एक मूल्य के सिद्धांत नकारते रहेंगे? इस विरोधापूर्ण जीवन को हम कब तक जारी रखेंगे? कब तक हम अपने सामाजिक और आर्थिक जीवन में समानता से लोगों को वंचित रखेंगे? अब इसके बाद जो सरकारें आई है, बाबा साहब के इस चेतावनी को भी ध्यान में ज्यादा नहीं रखा। ऐसा नहीं है कि उन्होंने योजना नहीं बनाई सामाजिक आर्थिक समानता लाने की, लेकिन जैसे ही 2014 में नरेंद्र मोदी जी आते हैं प्रधानमंत्री के रूप में देश में, उसके बाद से सामाजिक आर्थिक असमानता को दूर करने के लिए बहुत सी योजनाएं बनाते हैं, जिसका कल मैंने कईयों का जिक्र किया। बहुत सी योजनाएं जिसमें महिला सशक्तिकरण की योजनाएं भी सम्मिलित है। अब टॉयलेट बनते हैं, महिला की गरिमा भी बढ़ती है, जो संविधान की प्रस्तावना में कहा हुआ। महिलाओं को समानता भी मिलती है, एक घर में लाइट, एक घर में लाइट नहीं है, एक घर में टॉयलेट, एक घर में टॉयलेट नहीं है। तो ये समानता लाने का अधिकार महिलाओं को सबसे ज्यादा 2014 के बाद इसने स्केल भी बढ़ाया, योजनाओं में बजट भी बढ़ाया और स्पीड भी बढ़ी। इसलिए मैं ये कहना चाहता हूं कि भारत के संविधान की प्रस्तावना में सामाजिक और आर्थिक न्याय का भी उल्लेख है और प्रतिष्ठा और अवसर की समानता का भी उल्लेख है। आज के इस बिल से महिलाओं की प्रतिष्ठा तो बढ़ेगी, अवसर की समानता भी बढ़ेगी, महिलाओं को रिप्रेजेंटेशन मिलेगा। इसके महत्वपूर्ण 4 ऐसे क्लोज हैं जिनका मैं जिक्र करना चाहूंगा कि हम जो इस बिल के माध्यम से अमेंडमेंट कर रहे हैं, इसमें 4 महत्वपूर्ण क्लोज हैं। बाकी जो चर्चा होगी उसके बाद जो विषय आएंगे उसका बाद में उत्तर देने का अवसर मिलेगा, आप देंगे तो मैं दूंगा। पहला जो क्लॉज है वो संविधान का आर्टिकल 239, उसमें हम एक 239AA जोड़ रहे हैं, जिससे नेशनल कैपिटल दिल्ली की असेंबली में महिलाओं के लिए 33% सीट का रिजर्वेशन सुनिश्चित होगा। ये इट इज ए फर्स्ट अमेंडमेंट क्लॉज है इस बिल में, क्लॉज 2। फिर हम दूसरा क्लॉज 3 जोड़ रहे हैं, जिसमें 330 आर्टिकल जो संविधान का है उसमें 333A एक हम सेक्शन जोड़ रहे हैं, आर्टिकल जोड़ रहे हैं, जिसके अनुसार महिलाओं के लिए लोकसभा में 33% आरक्षण होगा लोकसभा में। ये बहुत बड़ा कदम है अध्यक्ष जी, बहुत बड़ा कदम है। और तीसरा संशोधन बिल के क्लॉज 4 के अनुसार संविधान के आर्टिकल 332 के बाद एक नया आर्टिकल 333A जोड़ा जा रहा है, जिसके अनुसार महिलाओं के लिए स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली में 33% सीटों का प्रावधान हम करने जा रहे हैं। और जो चौथा एक क्लॉज है 5, उसके अनुसार संविधान का आर्टिकल 334 के बाद एक नया आर्टिकल 333A जोड़ा जा रहा है, जिसके अनुसार महिलाओं के लिए ये आरक्षण जो आज ये सदन चर्चा के लिए ले रहा है, ये आरक्षण 15 सालों के लिए प्रभावी रहेगा। 15 सालों के बाद अगर इसको बढ़ाना है तो ये संसद ही तय करेगी, ये संसद को अधिकार रहेगा। और ये जो सीटें हैं जितनी आज है, जैसे जैसे सीटें बढ़ती जाएगी 33% के अनुसार महिलाओं का आरक्षण भी बढ़ता जाएगा। अब मैं थोड़ा सा कि काफी कल भी चर्चा हुई, मैं थोड़ी हिस्ट्री देना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी ने अपने राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक जो वडोदरा में हुई, उसमें सबसे पहले संशोधन करके महिलाओं को सशक्त करें पार्टी में, इसके लिए 33% महिलाओं से पद भरे जाएंगे, ऐसा निर्णय किया। उसके बाद वातावरण बना, दूसरी पार्टियों में भी प्रेशर आया। अब किया कि नहीं किया मुझे पता नहीं है, लेकिन उसके बाद से भाजपा लगातार लोकसभा और राज्यसभा में 33% सीटें आरक्षित करने के लिए निरंतर प्रयास करती रही। और जब अटल जी की सरकार आई तो बिल लेकर के भी आई, कई बार सर्व समिति की बैठकें बुलाई सभी दलों की, कई बार प्रयास अटल जी ने किए। 12वीं लोकसभा के समय 98 में, 13वीं लोकसभा के समय 99 में महिला आरक्षण विधेयक लोकसभा में प्रस्तुत किया गया। और उपलब्ध रिकॉर्ड के अनुसार 1996 में 11वीं लोकसभा के दौरान एसटी देवेगौड़ा के समय भी ये पहली बार प्रस्तुत हुआ। उसके बाद ये कमेटी में चला गया और कमेटी ने रिपोर्ट दी। रिपोर्ट देने के बाद लोकसभा भंग हो गई तो वो बिल भी समाप्त हो गया।
मैं ये हिस्ट्री इसलिए देना चाहता हूं कि बाद में फिर यूपीए फर्स्ट के समय 17 दिसंबर 2009 में ये जो कमेटी की रिपोर्ट आई, जो बिल इन्होंने पेश किया मनमोहन सिंह जी के समय, इस रिपोर्ट के बाद 9 मार्च 2010 को ये बिल राज्यसभा में चर्चा के लिए लाया गया। 2 दिन चर्चा हुई। चर्चा का दौरान विरोध भी काफी हुआ, कुछ सांसदों ने बिल की कॉपियां भी फाड़ी, लेकिन अंततः राज्यसभा से ये बिल पास हुआ। इसमें भाजपा का सपोर्ट था, भारतीय जनता पार्टी ने खुले मन से सपोर्ट किया था इस बिल का। राज्यसभा में चर्चा तथा पास होने के बाद 12 मार्च को, अध्यक्ष जी जैसा आप प्रक्रिया जानते हो संसदीय परंपरा की, 12 मार्च 2010 को यह बिल लोकसभा में कम्युनिकेट हो गया। लोकसभा के सेक्रेटरी जनरल ने इसको पढ़ दिया तो ये लोकसभा की प्रॉपर्टी हो गया। और जब प्रॉपर्टी हो गया तो उसके बाद कई बार हम प्रतिपक्ष में थे उस समय, हमने भी डिमांड की कि इस बिल को ले आओ, लेकिन इनको सत्ता सुख का ज्यादा विषय था, इस बिल के बारे में चिंता कम थी, इसलिए बिल लेके नहीं आए। फिर लोकसभा जैसे ही भंग हुई 18 मई 2014 को, तो ये बिल भी लैप्स हो गया। तो लोकसभा में तो कभी इनके पीरियड में चर्चा के लिए नहीं आया। फिर मैं ये कहना चाहता हूं कि ये कल जो अननेसेसरी ये विवाद कर रहे थे, संविधान में साफ लिखा हुआ है, आर्टिकल 107 के सब आर्टिकल 5 में प्रावधान है, यदि कोई बिल लोकसभा में लंबित है तो वह लोकसभा के विघटन के साथ ही लैप्स हो जाएगा। इट इज ए कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन। तो मैं आपके माध्यम से ये कहना चाहता हूं कि ये बहुत महत्वपूर्ण बिल है। इसमें अगर सर्वसम्मति बने आपके माध्यम से तो बहुत अच्छा रहेगा। सदस्यों के जो सुझाव आएंगे उनको हम जरूर ध्यान में लाएंगे, क्योंकि एक कविता के माध्यम से अभी का भाषण में समाप्त करना चाहता हूं। नारी के बारे में हमारे शास्त्रों में लिखा है, तुम सृष्टि की आधारशिला, तुम सृष्टि की आधारशिला, तुमसे मानव को प्राण मिला, संगीत तुम्हारा कण कण में, तुमने जीवन में रंग भरा। വനിതാ സംവരണവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ബില്ലിൽ ലോക്സഭയിൽ ചർച്ച തുടങ്ങിയിരിക്കുന്നു. വനിതകൾക്ക് തുല്യത നൽകുന്ന ബില്ല് എന്ന പ്രതികരണമാണ് കേന്ദ്ര നിയമമന്ത്രി അർജുൻ റാം മേഘ്വാളിന്റെ ഭാഗത്ത് നിന്ന് ഉണ്ടായിരിക്കുന്നത്. നിർണായകമായ ചുവടുവെപ്പാണ്. വനിതാ ശാക്തീകരണമാണ് ലക്ഷ്യം. മുൻവിധികളില്ലാതെയാണ് കേന്ദ്ര സർക്കാർ ബില്ലിനെ സമീപിച്ചിരിക്കുന്നത്. 15 വർഷത്തേക്കാണ് വനിതാ സംവരണം പ്രാഥമികമായി ഉണ്ടാവുക. അതിനുശേഷം വർദ്ധിപ്പിക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിന് സാധിക്കും എന്നതടക്കമുള്ള കാര്യങ്ങൾ അദ്ദേഹം സഭയിൽ വിശദീകരിക്കുന്നു.